Hi dear students, welcome to Business Studies class. So we are started our fourth chapter, that is business service. So what is the first business service? That is the banking, and the terms related with the banking already we are completed the things. The second service, that is the insurance. So what is the insurance means what? Insured means what? Insurer means what? Policy means what? Everything along with the functions of insurance we are covered. After that, the important question from the insurance from this chapter, that is principles of insurance, that is also we are completed in the last video. So according to the exam point of view, that question it is a very important principles of insurance. So in this video we are going to discuss about the types of insurance. So already you are aware about the types of insurance, but let it be, I am going to explain in today's video. So there are basically lot of types of insurance are there. Life insurance is there, fire insurance is there, marine insurance it is there, health insurance it is there. Lot of types of insurance are there. Crop insurance may be there, but basically for your syllabus mostly they are categorized the three types of insurance they are given. That is the life insurance, fire insurance and marine insurance. Okay, according to syllabus they are given three type of insurance. Okay, so rather than that we have a lot of type of insurance. We will discuss that type within the life class. So first one, that is the life insurance. The name itself indicates. So why this insurance policy we are going to take? Because generally the people take this policy when they have fear of dying. बेसिकली इंश्योरेंस यानी कि हम एक पर्टिकुलर प्रीमियम भरते हैं, एक मंथली भरते हैं, नहीं तो 4 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद, नहीं तो ईयरली, ऐसा पर्टिकुलर अमाउंट दैट इज अ प्रीमियम हम इंश्योरेंस के नाम पे ऊपर इंश्योरेंस कंपनी में भरते हैं. सो उसके लिए टाइम पीरियड रहता है कि इतने साल कंप्लीट होने के बाद आपको वो अमाउंट मिलेगी. तो ये अमाउंट किसके लिए रहते हैं? फॉर अवर फ्यूचर पर्पस. ओके, अदरवाइज टू वर्क ऑन द, अदरवाइज टू टेक to give a financial support to our family, otherwise to ourselves in the future. So that's why we are going to take the insurance. So life insurance हम क्यों लेते हैं? Particularly life insurance हमारे लाइफ के लिए लेते हैं. मतलब generally people take this policy when they have fear of dying. जिनको भी हम कभी ना कभी मरेंगे, मरने के बाद जो डर रहता है, हम कभी ना कभी तो मरेंगे, इंसान है मतलब कभी ना कभी तो हम मरने वाले हैं. तो हमारे मरने के बाद हमें हमारे फैमिली को कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. इसके लिए है कि हम अभी से इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं. तो हमारे मरने के बाद वो इंश्योरेंस हमारे फैमिली मेंबर्स को मिलेगा, यानी कि उनको फाइनेंशियल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. सो जिसको भी मरने के बाद हमारे फैमिली का क्या होगा ऐसा लगता है, वो लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं. सो प्रोवाइड अ फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली आफ्टर द डेथ. सो हमारे मरने के बाद हमारी फैमिली को पैसा कहाँ से आएगा? तो इंश्योरेंस के नाम के ऊपर हम अभी भी पैसा सेव करते जाएंगे तो हमारे मरने के बाद हमें हमारे फैमिली को पैसा आएगा. इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं. द टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. So there are types of life insurance are also there. So first one, whole life assurance policy. So basically two contents are there. One is insurance and another one is assurance. दो कंटेंट है, दो चीजें है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक है इंश्योरेंस है, दूसरा अश्योरेंस है. इंश्योरेंस मीन्स व्हाट? व्हेन यू आर गोइंग टू टेक अ इंश्योरेंस पॉलिसी, you are means insurer is going to give a compensation when and only you are under the damage or losses or any uncertainties happen to you. But assurance is whatever it may be, after completing your maturity period you are going to get your sum, that is the sum, insured sum you are going to get there, that is the assurance. अभी assurance और insurance में क्या डिफरेंस है? इंश्योरेंस मीन्स जो भी आप इंश्योरेंस लेते हो, तो आपको वो इंश्योरेंस कंपनी कब पैसा देगी? जब आपके बारे में कुछ तो अनसर्टेन थिंग्स हुआ, कुछ तो मतलब जोखिम हुई है, नहीं तो कुछ तो आपका लॉस हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से, फायर की वजह से कुछ तो लॉस
होना चाहिए, उसके लिए कुछ तो अनहोनी चीजें होनी चाहिए इंश्योरेंस का पैसा मिलने के लिए। बट अश्योरेंस में क्या है, आफ्टर पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड इज देयर, मतलब आपने अश्योरेंस निकाला, इंश्योरेंस में ही आता है अश्योरेंस है। सो मेरे मरने के बाद हम कभी ना कभी तो मरने वाले हैं, मतलब एक घटना घटने वाली ही है, तब आपको वो पैसा मिलेगा। बट हम ऐसा बोल नहीं सकते कि मैंने मेरे घर का, मेरे बिजनेस का फायर इंश्योरेंस निकाला है, बट मेरे बिजनेस में आग लगेगी या नहीं हमें पता नहीं, लगने वाली है ये भी नहीं हम कह सकते, बिकॉज दिस थिंग्स आर अनसर्टेन। बट मैंने लाइफ इंश्योरेंस निकाला है, मतलब मैं कभी ना कभी तो मरूंगी, उसके बाद मेरे फैमिली को मेरा सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। सो होता ही होता है, दैट इज द अश्योरेंस। और जो चीजें होगी भी और नहीं होगी भी उसके लिए हम इंश्योरेंस निकालते। अश्योरेंस यानी कि वो चीज होगी या नहीं होगी, दैट नॉट द मैटर, बट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होने के बाद जो भी हमने पैसा भरा है वो हमें मिलेगा। बट इंश्योरेंस में जो भी हमने पैसा भरा है हमारे फर्म में, हमारे बिजनेस में, वो घटना घटने के बाद ही हमें पैसा मिलेगा, दैट इज द इंश्योरेंस। अश्योरेंस मीन्स कंपल्सरी आपको पैसा मिलता है, बट इंश्योरेंस में कुछ तो अनहोनी चीजें होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। सो होल लाइफ अश्योरेंस पॉलिसी में यहाँ पे पैसा मिलता ही मिलता है। सो इंश्योर्ड सम इज पेड आफ्टर द डेथ। सो जिसने भी इंश्योरेंस निकाला है, इंश्योर्ड इंश्योर्ड, जिसने पॉलिसी निकाली है उसको हम बोलते हैं इंश्योर्ड। सो हु इज इंश्योर्ड आफ्टर द डेथ ऑफ दैट इंश्योर्ड, what is the sum, what is your paid a premium, the sum of that paid after the death means insured sum is paid after the death. So जो भी आपने प्रीमियम के नाम पे ऊपर इंश्योरेंस कंपनी में पैसा भरा है, जिसने वो पॉलिसी निकाली है उसके फैमिली को जो भी उन्होंने पैसा भरा है वो सम ऑफ दैट पेड इज गिवन टू देयर फैमिली। सो हियर इंश्योर्ड इज कॉल्ड अश्योर्ड। सो यहाँ पे जो भी इंश्योर्ड होता है उसको क्या बोलेंगे हम, अश्योर्ड। इंश्योर्ड मीन्स जिसने पॉलिसी निकाली है, मैंने लिया है पॉलिसी, मैंने ली है पॉलिसी, जिसने भी पॉलिसी ली है, आई एम इंश्योर्ड। सो इंश्योर्ड को ही यहाँ पे अश्योर्ड करके बुलाते हैं, क्योंकि हमें पैसा मिलने ही मिलने वाला है, क्योंकि कभी ना कभी तो हम मरेंगे। सो प्रीमियम इज पेएबल फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम और 15 to 30 years। सो प्रीमियम आप मंथली भर सकते हो और 4 मंथ में भर सकते हो, दैट इज अ क्वार्टरली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, आप कैसे भी प्रीमियम भर सकते हैं। तो उसके बाद कम से कम 15 to 30 years तक भरना चाहिए। उसके बाद आपकी डेथ हो गई तो व्हाट इज द सम ऑफ योर प्रीमियम, सम ऑफ योर दैट इज गोइंग टू बी पेड टू योर फैमिली, दैट इज अ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे एक चीज, जिसने पॉलिसी ली है उसके मरने के बाद ही वो पैसा मिलेगा, दैट इज अ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। The next thing is so विवेक का होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वहाँ पे एक चीज है दैट इज उस आदमी के मरने के बाद ही पैसा मिलेगा। द सेकेंड थिंग इज एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अश्योरेंस है मतलब यहाँ पे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। सो अश्योरेंस पॉलिसी, एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, यहाँ पे भी जो आपका पैसा है, जो आपकी एडिशनल सम है, जो भी आपका पैसा है वो दो चीज में है। एक तो डेथ, मतलब जिसने पॉलिसी निकाली है, ओके, जिसने पॉलिसी ली है उसके मरने के बाद, नहीं तो आफ्टर मैच्योरिटी। एक तो वो आदमी मरना चाहिए, नहीं तो आफ्टर मैच्योरिटी, यानी कि एक मैच्योरिटी पीरियड रहती है 15 to 30 years। हमने डिसाइड करना चाहिए कि हम कितना पैसा, मतलब कैसे भर रहे हो और कितने साल तक भर रहे हो। सपोज मैं 15 साल तक भर रही हूँ इंश्योरेंस का पैसा, प्रीमियम दैट इज प्रीमियम आई एम गोइंग टू पेइंग फॉर 15 years, ओके। सो 15 साल तक भर रही हूँ, तो 15 साल तक भर रही हूँ, यानी कि मेरा मैच्योरिटी पीरियड है 15 years, ओके, 15 years पीरियड है मैच्योरिटी पीरियड। सो डेथ, सो यहाँ पे एक चीज है, जो भी इंसिडेंट्स फर्स्ट होगी दैट इज विच इज अर्ली, 15 ईयर्स से पहले मेरी डेथ होगी या 15 ईयर्स पहले कंप्लीट होगी। 15 ईयर्स से पहले मेरी डेथ हो गई तो भी मुझे पैसा मिलेगा, और मेरे डेथ के पहले वो 15 ईयर्स कंप्लीट होगा तो भी मुझे पैसा मिलेगा। सो
15 ईयर्स से पहले आपकी डेथ हो गई तो आपके फैमिली को पैसा मिलेगा। सो डेथ से पहले 15 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं तो आपको पैसा मिलेगा, दैट इज इंश्योर्ड को पैसा मिलेगा, जिसने भी पॉलिसी ली है उसको पैसा मिलेगा। मतलब हियर वी आर अश्योर्ड अबाउट द मनी। ओके, यहाँ पे पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बट एक तो आपके मरने के बाद, नहीं तो जो भी आपकी मैच्योरिटी पीरियड है वो खत्म होने के बाद। इसमें से कौन सी घटना पहले घटती है उसके ऊपर डिपेंड है कि किसको पैसा मिलने वाला है। आप फर्स्ट मरे, मतलब मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने से पहले आपकी डेथ हो गई तो आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा, और मैच्योरिटी पीरियड फर्स्ट खत्म होगी तो आपको पैसा मिलेगा। दैट इज द थिंग। नेक्स्ट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सो नेम इटसेल्फ इंडिकेट जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सो टेकन फॉर 2 मेंबर्स। मोस्टली जॉइंट लाइफ पॉलिसी के दो लोग मिलके पॉलिसी लेते हैं। मोस्टली जो भी हस्बैंड और वाइफ है वो मिलके लेते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी, यानी कि दोनों भी पैसा भर सकते हैं, तो एक ही दोनों का पैसा भर सकता है वहाँ पे प्रीमियम के नाम पे। सो अश्योर्ड सम इज पेएबल आफ्टर द डेथ ऑफ वन। सो जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब जिसका भी डेथ पहले होगा, सो जो भी बाकी बचेगा उसको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। यानी कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड का डेथ पहले हो गई तो उसकी वाइफ को पैसा मिलेगा, वाइफ की डेथ पहले हो गई तो उसके हस्बैंड को पैसा मिलेगा। दैट इज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। द नेक्स्ट वन इज annuity policy, that is assured sum is payable when assured attaining certain age. Annuity policy means what? We are fixing some maturity period. After the completion of that period, we are going to insurance company is going to pay the assured sum of particular age. यानी कि अभी सपोज मेरा एज 25 है तो मैंने पॉलिसी निकाली 15 ईयर की, मतलब नहीं तो 25 ईयर की, मतलब मेरा एज 15 होने के बाद मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। मतलब मैं एक सर्टेन एज में जब जाऊंगी तब मुझे पैसा मिलेगा। यानी मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे पैसा चाहिए तो रिटायरमेंट होने तक मैं पैसा भरूंगी, रिटायरमेंट होने तक मैं प्रीमियम भरूंगी, उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा। दैट इज द एन्युटी पॉलिसी। एक पर्टिकुलर एज क्रॉस होने के बाद मुझे पैसा मिलेगा। दैट इज द थिंग। एक चिल्ड्रंस एनरोलमेंट पॉलिसी। सो नेम इटसेल्फ इंडिकेट इट इज पर्टिकुलरली मेड फॉर द चिल्ड्रंस बाय देयर पेरेंट्स। सो टेकन फॉर द चिल्ड्रंस फ्यूचर। सो चिल्ड्रंस फ्यूचर, सो जिसने भी पॉलिसी निकाली है वो उसके फैमिली मेंबर्स को उसके चिल्ड्रंस के लिए निकालते हैं, पेरेंट्स चिल्ड्रंस के लिए निकालते हैं। सो जब भी उनकी चिल्ड्रंस का मैरिज है तो हायर एजुकेशन है, उसके लिए पैसा मोस्टली यूज करते हैं। तो व्हेन चिल्ड्रंस अटेन पर्टिकुलर एज सम इज पेड। सो चिल्ड्रन का जो भी एज है, एक 25 एज होने के बाद, बच्चे का एज 25 होने के बाद, बच्चे का एज 20 होने के बाद हमें पर्टिकुलर सम जो भी हमने पैसे भरे इंश्योरेंस के वो हमें मिलेंगे उनके मैरिज के लिए, नहीं तो उनके हायर एजुकेशन के लिए। So this things is related with the life insurance and the types of life insurance. Next we are going to discuss about the fire insurance. The next type of insurance is that is a fire insurance. Life insurance it is particularly taken for the human life, and fire insurance it is going to taken for a particular form of business purpose. Okay. सो जो भी फायर इंश्योरेंस है वो इंसान के लिए नहीं लिया जाता, वो पर्टिकुलर खेती के लिए है, तो जो भी आपका बिजनेस फॉर्म है उसके लिए फायर इंश्योरेंस निकाला जाता है। सो व्हाई द फायर इंश्योरेंस इज गोइंग टू टेकन, बिकॉज इंश्योर द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज फायर इंश्योरेंस, पर्टिकुलरली इज गोइंग टू टेकन बाय द मींस व्हिच इज लॉस्ट और डैमेज कॉज्ड बाय द फायर। So insurance gives the compensation to insured for the financial loss to property due to the fire. So जो भी हम लाइफ के लिए नहीं ले सकते, जो भी बिजनेस फॉर्म है, हमारी खेती है, उसके लिए हम फायर इंश्योरेंस लेते हैं। तो जो भी चीज़ें फायर की वजह से, आग की वजह से हमारे बिजनेस में लॉस हुए हैं, उसके बाद जो भी पैसा मिलने वाला है दैट इज द फायर इंश्योरेंस। सो जो भी कंपेंसेशन, नुकसान भरपाई हमें मिलने वाली है ड्यू टू द फायर, आग की वजह से जो भी मिलने वाले दैट इज द फायर इंश्योरेंस। सो लम सम और इंस्टॉलमेंट। सो यहाँ पे आप पैसा कैसे भर सकते हो, एक तो जो भी आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम है एक ही बार में, एक साल में भर सकते हो, नहीं तो इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो। सो पर्टिकुलरली यहाँ पे लाइफ पीरियड इट इज ओनली फॉर 1 ईयर। सो पर्टिकुलरली लाइफ पीरियड 1 ईयर का होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में लाइफ जो भी आपके प्रीमियम भरते हो इट इज फॉर 15 to 30 ईयर्स। सो यहाँ पे कंडीशन
कंपेंसेशन नहीं देंगे। इट लॉस डैमेज शुड बी एक्सीडेंटल नॉट इंटेंशनल। सो जो भी लॉस हुआ है फायर की वजह से, जो भी फायर हुआ है वो एक्सीडेंटल होना चाहिए, मतलब जो भी करंट की वायर है वो टूट जाने से आग लग गई, मतलब एक्सीडेंटल होना चाहिए। इंटेंशनली पर्टिकुलर इंश्योरेंस का पैसा मिलने के लिए आप ही आपके बिजनेस में आग लगाएंगे, आपने ही आपके बिजनेस में फायर लगाया है, ऐसे इंटेंशनली किया है, ऐसे कंपनी को पता चला, इंश्योरेंस को पता चला आप इंटेंशनली पैसा मिलने के लिए ऐसा किया है, तो वहाँ पे आपको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ें एक्सीडेंटल होने चाहिए, मतलब हमें पता नहीं कि कब होगा, किसकी वजह से हुआ है वो पता नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स पर्टिकुलरली आप ही इंटेंशनली पैसा मिलने के लिए ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये कंडीशन है, एक्सीडेंटल होना चाहिए और एक्चुअल रियल में वहाँ पे लॉस होना चाहिए। सो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस क्या है, वॉट एवर आई एक्सप्लेन द टर्म्स विद इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस दैट ओनली। सो एलिमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस, फर्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सो जो भी हमें पैसा मिलने वाला है उसके ऊपर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब जितना बिल्डिंग, सपोज बिल्डिंग को लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी को लॉस हुआ है, तो उसके बदले में जितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए। नेक्स्ट अटमोस्ट गुड फेथ। सो यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो इंश्योर्ड यानी जिसको पॉलिसी चाहिए, वो भी सभी जो भी चीज़ें हैं, रियल चीज़ें हैं, जो भी आपके बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है, वो सभी चीज़ें आप इंश्योरेंस के साथ शेयर करना चाहिए, इंश्योरेंस के साथ वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और इंश्योरेंस भी जो भी उस पॉलिसी के टर्म्स है, कंडीशंस है, वो सभी चीज़ें बतानी, एक दूसरे को बताना चाहिए, क्योंकि जो भी इंश्योरेंस का है वो एक दूसरे के विश्वास के ऊपर डिपेंड है। तो जो सच है उसके बिजनेस के बारे में वो आप इंश्योरेंस के साथ शेयर करना चाहिए, और इंश्योरेंस भी जो भी टर्म्स कंडीशंस पॉलिसीज है वो आपके साथ शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट इंडेमनिटी। सो इंडेमनिटी मीन्स वॉट एवर द लॉसेस इट मे बी देयर। सपोज आपके बिल्डिंग है, आपका बिजनेस है, आपका फर्म है, उसमें फायर लग गया, उसकी वजह से लॉस हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी जितना लॉस हुआ है उसको उतना कंपेंसेशन आपको देगी। बट जो लॉस होने के बाद जो भी स्क्रैप पड़ा हुआ है, जो भी वेस्टेज है, वो उसके ऊपर आपका हक कोई भी नहीं होगा, वो बिक के आप पैसा कमा सकते हो, बट इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करने को नहीं देती। जो लॉस हुआ है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है, बट जो भी आपके पास डैमेज प्रोडक्ट है, फायर की वजह से जो भी डैमेज प्रोडक्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी लेके जाती है। दैट इज द इंडेमनिटी। एंड लास्ट वन प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, यानी कि सही रीजन होना चाहिए, जो आग लग गई है वो मतलब फायर से ही लॉस होनी चाहिए आपके बिजनेस में, और जो लगी है आग, जो भी रीजन है उसके लिए वो प्रॉक्सिमेट कॉजेस होने चाहिए। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ insurance. That is, in this video I explained about the life insurance, types of life insurance and fire insurance. In next video we are going to discuss about marine insurance. I hope you got the clear concept about it. Suppose if you have any doubt we will discuss in next class. So thank you so much. Bye bye.